ask the panelist question. You can start from there. Yeah, fine. सबसे पहले सर जॉन जोसेफ सर, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये एमईपी बेसिकली व्हाट इज दिस एमईपी, मतलब ये मैकेनिकल प्लम्बिंग जो सर्विसेज हैं, इसके लिए कंसल्टेंट्स जो लगते हैं, सो बेसिकली आप उसके ऊपर थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देंगे हमको, एंड व्हाई दिस इज वेरी मच नेसेसरी कि ये एमईपी कंसल्टेंसी अपार्ट फ्रॉम ये आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स, ये इनके अलावा ये क्यों इतना दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैट एंड कंसल्टेंसी क्यों करना चाहिए इम्पोर्टेंट, सो जस्ट उसके ऊपर थोड़ा आप अपना व्यूज थोड़ा इसमें शेयर करेंगे सर. Thank you all for inviting me for this wonderful Yes. webinar. Yes. I must start my answers with an apology that I am not very good at Hindi, so I will not be speaking in Hindi. I will speak in English. And at any point, if people cannot comprehend, understand what I am speaking, I will request my colleague Sarfaraz to tell a brief about it, in a paraphrase, and talk about it in Hindi, so that people who doesn't understand English can also understand Hindi. So please pardon me for that inability of me not to speak in Hindi. Now, since you are asked a question about MEP consultancy, now I'll have to start with telling what MEP means. MEP, as you can see on the slide here, is essentially talks about the HVAC. HVAC is heating, ventilation, and air conditioning systems, electrical systems, plumbing systems, and fire protection systems. That is a basic elements of MEP. Now, as the lifestyle of the people have changed, as the complexity of the building construction has changed, the size and height of the buildings have gone up higher and higher. The scope and elements of this MEP has also gone substantial changes. Now, when we talk about MEP, it does not only speak about HVAC or electrical or plumbing or fire systems. It also talks about a lot of all the other systems like water treatment plant, sewage treatment plant, rainwater harvesting, security systems, fire detection and alarm systems, evacuation systems, pressurization of lift wells and stairwells, all the low voltage systems like TV, telephones, data systems, and Wi-Fi. All these elements, as you can see on the slides, these are all now part of when we talk broadly about MEP systems. Now, it is not necessary that all these systems will come into all the buildings. Buildings which are small or which are a different concept, low income group, medium income group, or premium buildings. So these things change according to that. All these elements need not necessarily be part of all the buildings. So that is the MEP systems. Now, Sarfaraz, go back to the first slide. Now, when we talk about the consultancy service starts with conceptual design, then we go to the schematic designs, detailed engineering, tendering, then construction management, and finally, when the project is, all the constructions are over, we test, commission, and hand over. So this is broadly what a consultant can do in a building construction, design, and construction. Now, all these elements will go hand in hand as part of, along with the architectural and structural designs. When the architect do the concept design, the MEP concept also should be ready so that we can coordinate with them and get things dovetailed into the building design. Same way at the different stages of it. Now, this is broadly, I can speak about your first question about MEP consultancy services. Then. हाँ सर, अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका समझो कि ये जो इसको MEP जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग रेडी हो जाए, RCC कंस्ट्रक्शन हो जाए, उसके बाद हमको ये MEP कंसल्टेंसी रखना चाहिए या कभी से MEP कंसल्टेंट को हायर करके विल हैव टू टेक दैट सर्विसेज, एंड इज इट एक सवाल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये है आपका सर. Now, as I have just mentioned about the first answer,
you see the complexities of the elements in MEP design. Now, all these elements have to come right from the beginning of a project. When you start conceptualizing it, it has to come into the picture. Otherwise, the problem is that many times after the building is constructed or the design is gone on an advanced stage of this one, making changes to suit the MEP requirements will be extremely difficult. See, for example, I know in subsequently a subject is there specifically on the construction. My colleague Sarfraz will answer that a little more in detail. But generally, an MEP consultant should get involved with the designs right at the beginning when an architect conceptualizes the project. That is better for the project. That will save your rework, or otherwise every time if there is a requirement, you may have to cut open, you have to demolish, rebuild. It can be avoided. All those, if the MEP consultant also is involved right at the beginning, like the structural consultant gets involved. Okay. Yes. Uday bhai, now can you post another? आपका कोई question? Yes. जैसे सर ने अभी बताया, राइटली सर ने बताया कि MEP कंसल्टेंट कितने इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। आप जरा सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी मेंबर्स जो भी अपने देख रहे हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं इसके बेसिकली कि MEP सिस्टम होता क्या है, रेफरी मतलब AC का क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली कैसे हम लोग प्लम्बिंग शाफ्ट के लिए वर्कआउट कर सकते हैं प्रॉपरली, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट ये चीज फॉर रेजिडेंशियल रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी को पता चले कि सर्विसेज भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? self development and a builder developed project. As far as MEP systems are concerned, there is no difference. The difference comes only the category or the type of buildings. Now, if it is a low income group, low rise building, the requirements are totally different from a tall building with premium requirements. So it's not whether it is self-developed or a builder developed. Now, what is the category of building? That determines the various MEP systems. I don't think anything specifically a self-developed society or a self-developed group of people can achieve by anyway modifying the MEP systems. The advantage of a self-development is that the MEP systems are developed in close coordination with the owners themselves. Unlike a builder has no stake in the building after it is sold to a user. Whereas the self-development society, the members themselves have a direct stake in the project. Therefore, they can get involved in what is required from their brief is very important. So that's the only difference in a self-developed society. Correct. Nupur, are you in? Yes, I'm back. Yes. So can you take it from here? Yeah. Sorry, मेरा network issue हो गया था तो मैं exit होना पड़ा. I'm back. So sir, यही एक सवाल पूछना था regarding MEP. सरफराज सर अगर आप आंसर कर सके तो, कि जब हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं एंड जब अभी बहुत सारी सोसाइटीज है जो ऑलरेडी डेवलपर रीडेवलपमेंट में गई है, तो हाउ डिफरेंट इट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि आज जब हम सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी कैन ऐड ऑल दीज प्लम्बिंग डिजाइन्स एंड आपके जो भी MEP डिजाइन्स है उसमें हम लोग एट अ अपग्रेडेड वर्जन भी जा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ नॉर्मल रीडेवलपमेंट कहाँ पे वो एक पुल बैक आ जाता है, या कहीं पे भी वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से कहीं पे प्रोडक्ट में कहीं पे कुछ कमियां रह जाती है क्या? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन समथिंग ऑन दैट? Professor, you want to take it? Yeah, sure. I will take it. Pertaining to specifically if I talk about redevelopment project के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो major difference है कि those who are developing, basically those who are developer, they are going to stay in that building, वो खुद ही उसको ऑक्यूपाई करने वाले हैं. तो जो मेजर फोकस होता है प्राइमरीली हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कितना इफिशिएंट सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं. नेचुरली बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में भी हम इफिशिएंसी और सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, लेकिन अनलाइकली एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में जो कैपिटल कॉस्ट पे कंसंट्रेशन होता है, हमारे केस में ज़्यादा फोकस होता है कि हम ज़्यादा इफ़िशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करें
अगर हमारा अभी इस वक्त कुछ एक्सपेंडिचर्स बढ़ भी रहा है तो दैट विल पे बैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त में वो पे बैक हो जाएगा और उसके बाद हमारा वो इफिशिएंसी की वजह से हमें उसका बेनिफिट्स पास ऑन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो भी एयर कंडीशनिंग वगैरह के सिस्टम हम प्रपोज कर रहे हैं, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, या फिर हम लोग जो भी दूसरे सिस्टम्स ऑप्ट कर रहे हैं रीडेवलपमेंट में, तो उसमें हमको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, कि हमारा इफिशिएंट सिस्टम हो जो कि फ्यूचर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको बेनिफिट पास ऑन करे। ओके, थैंक यू सर। तो व्यूअर्स का मुझे यही बताना है कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेनली अपॉन द टेक्नोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू एमईपी, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड अब क्या टेक्नोलॉजीज है आज के डेट पे एंड हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जो सोसाइटीज ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में आगे बढ़ी है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड, या अगर आपने ऑलरेडी डेवलपर को अपॉइंट किया है तो सिर्फ आप अपने घर के प्लान पे ध्यान मत दीजिए, पूरे बिल्डिंग में किस तरीके का एमईपी का प्लानिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का प्लानिंग हो रहा है या प्लम्बिंग का प्लानिंग हो रहा है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। सो गो टुडे आस्क योर डेवलपर, या अगर आपका रीडेवलपमेंट हो रहा है तो आपके आर्किटेक्ट को पूछे जाके कि वेयर आर द एमईपी प्लान्स, एंड ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो एमईपी डिजाइन है वो आपकी बिल्डिंग के लिए आगे जाके कॉस्ट इफेक्टिव होना है या नहीं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आगे जाके वो बिल्डिंग में रहना है। एंड ये सारी जो टेक्निक्स है इसकी वजह से आपका आगे जाके मेंटेनेंस बढ़ना नहीं चाहिए, वेराज कम होना चाहिए। देयर शुड बी अ कॉस्ट सेविंग, एंड कॉस्ट सेविंग से ही रिलेटेड आगे जाके हम आपको एक और चीज बताने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जिससे आपका कॉस्ट सेविंग होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप उससे इनकम जनरेट कर पाओगे। यू नो देयर आर मेनी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज जिससे एक कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद अपने लिए एक इनकम भी जनरेट कर सकती है। सो बी ट्यून्ड इन। ऑल्सो हमारा आज का जो टॉपिक है और हमारे जो पैनलिस्ट है, दे हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री एंड दे हैव बीन एक्सपर्ट इन व्हाट दे डू। तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में जो भी सवाल है आप अपने कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। हम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे चिंतन जी से पूछना था कि सर आपने प्लम्बिंग में यू नो यू आर द फोर्थ जनरेशन इन योर फैमिली एंड यू हैव योर कोर एक्सपर्टीज इनटू प्लम्बिंग। तो मुझे यही जानना है, मतलब वन थिंग एज अ लेमैन जो मैंने देखा है आज तक कि जब हम हमारे बिल्डिंग के टेरेसेस पे घूमते हैं, सो यू नो टेरेस के जो फ्लोर है टेरेस का उसके ऊपर हमको पाइप्स दिखते हैं, प्लम्बिंग पाइप्स बिछाए हुए दिखते हैं। सो इजंट देयर अ वे टू अवॉइड दैट? आई मीन व्हाई वो प्लम्बिंग के पाइप्स क्यों दिखने चाहिए? मतलब कैन द एंटायर थिंग बी कंसील्ड और प्लान्ड इन सच अ वे कि वो यू नो हमको डे टू डे लाइफ में हमारे रास्ते में ना आए या आड़े ना आए? राइट, थैंक यू नुपुर। ये सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड ये व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, बहुत सारे लोग कई बार ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मगर दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं कहना चाहूंगा। द फैक्ट इज कि टेरेस पे जो पाइप डाले जाते हैं वो उसे टेरेस लूप कहा जाता है। एक टेरेस लूप इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे जितने डक्ट्स हैं, जितने टॉयलेट्स हैं, जितने किचन्स हैं, हर जगह इक्वल प्रेशर में पानी प्रोवाइड किया जाए। मगर टेरेस के फ्लोर पे ये पाइप डालना ऐसा जरूरी नहीं है। ये लूप का मतलब क्या होता है? एक रिंग मेन भी कह सकते हैं उसे, लूप भी कह सकते हैं। तो उस लूप को आप अपनी टेरेस की पैरापेट वॉल पे घुमा सकते हैं। इट कैन बी डन इन अ वेरी, एक बहुत अच्छे से एस्थेटिक तरीके से किया जा सकता है, जिस तरह वो आपके फ्लोर पे नहीं आएगा। तो दूसरी तरह के पाइप जो होते हैं, कई बार रेन वाटर पाइप्स भी होते हैं जो टेरेस के एज पे होते हैं। वो तो ऑब्वियसली आपके पैर में नहीं आने वाले या बीच में नहीं आने वाले, बट ये टेरेस के जो वाटर सप्लाई के पाइप्स हैं, द राइट वे टू डू इट इज जस्ट पुट देम ऑन द पैरापेट वॉल, टेक इट इन अ सर्कुलर लूप, जहां जहां डक्ट तक जाना है वहां से प्रॉपर डक्ट में उसे सप्लाई कर दिया जाए। एंड वही सही तरीका है। अगर आपने जहाँ टेरेस पे पाइप्स बीच में देखे हैं तो थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि एक गलत तरीका है, वो सही तरीका नहीं है काम करने का। ओके ओके ओके।
सर तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द टाइप एंड द टेक्नोलॉजी दैट शुड बी यूज्ड इन प्लम्बिंग, जिससे हमको जो डेली आज मेजॉरिटी जो सोसाइटीज में इश्यूज आते हैं दैट इज अबाउट लीकेजेस, कि ऊपर वाले का जो टॉयलेट या बाथरूम एरिया है वहां से नीचे वाले की वॉल में लीकेजेस आ रहे हैं, एंड जो सोसाइटीज बेसमेंट प्लान कर रहे हैं तो हमको हमेशा एक सवाल आता है सोसाइटी से कि हम बेसमेंट क्यों प्लान करें, बिकॉज वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ पार्किंग, क्योंकि अगर बेसमेंट प्लान करेंगे मुंबई में पानी भरता है एंड सबसे पहले बेसमेंट में पानी भरेगा। सो इन सब चीजों के बारे में आप प्लीज हमको थोड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं तो बी रियली रियली गुड फॉर आवर व्यूअर्स। उसके लिए मैं एक सबसे पहले एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा है, उसके कुछ इमेजेस में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह प्लानिंग होता है शुरू से। सो अगर मुझे कुछ 2-3 मिनट मिलेंगे वो कहने के लिए तो मैं जरूर दिखाऊंगा। यस यस। सो बेसिकली हम जब बात करते हैं उसे प्लम्बिंग कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जब हम शुरू करते हैं, जैसे जॉन सर ने शुरू में कहा कि कोऑर्डिनेशन एक चीज होती है एमईपी में जो दूसरी सर्विसेज के साथ किया जाता है, बट कई बार देखा गया कि प्लम्बिंग कोऑर्डिनेशन एक पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अभी मैं इस इमेज से ये कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंगें हैं वो हम इंसानों की तरह बनी हुई हैं। हर एक जन मेहनत करके, हम कंसल्टेंट्स जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मिलके एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाना, हमेशा हर एक जन चाहता है कि अच्छे से अच्छी बिल्डिंग बने जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो आगे। उसी तरह इंसान का शरीर भी होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं पाइप्स हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, बॉडी में भी इसी तरह होता है जो बिल्डिंग में होता है। मगर जब उसे अच्छे से नहीं किया जाता है तो वो ऐसा कुछ बन जाता है जो दिखने में भी भयानक होता है और उसका फंक्शनैलिटी भी बहुत बुरा हाल हो जाता है उसमें। तो बेसिकली प्लम्बिंग क्या चीज है? लोग जब पूछते हैं कि आप प्लम्बिंग करते हो, मगर प्लम्बिंग क्या चीज है? प्लम्बिंग वो एक ऐसा एक साइंस है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें साफ, स्वच्छ और हेल्दी पानी आप तक लाया जाए और आपका जो इम्प्योर डर्टी वाटर है उसको सेफ एंड सैनिटरी मेथड से डिस्पोज किया जाए। वो इतना सा सिंपल काम है प्लम्बिंग, पानी अंदर पानी बाहर। बट बहुत बार अभी क्या होता है, जब हम आपने जब नुपुर जी बेसमेंट की बात की है, तो बेसमेंट्स में बहुत सारी चीजें पहले से प्लान करनी पड़ती हैं। कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिल्डिंगों में 2 बेसमेंट होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 बेसमेंट होता है। आप आपकी अंडरग्राउंड टैंक्स कहाँ डालना चाहेंगे? फिर जैसे आपने पूछा कि बहुत बार मुंबई में अपने यहाँ बारिश का सिचुएशन होता है जिसमें फ्लडिंग हो जाती है। तो फ्लडिंग अवॉइड करने के लिए आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि आपका बेसमेंट साइज क्या है, आपके एरिया में रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, मैक्सिमम रेनफॉल कितनी होती है। उस रेनफॉल के बेसिस पे आपको एक कलेक्शन एरिया बनाना होता है बेसमेंट में, जिसे सम्प कहते हैं। आपको मटेरियल आपके शुरू से डिसाइड कर लेने पड़ेंगे ताकि आप क्या मटेरियल डालना चाहते हैं, किस तरह के पाइपिंग डालना चाहते हैं। सो ये जब आप बेसमेंट में डिसाइड करते हैं एक लोकेशन जहां पे सारा पानी जमा होगा, आपकी ड्रेन लाइंस डालेंगे, वो ड्रेन लाइंस सारी जाके उस जगह पे पानी को जमा करेंगी, जिसे एक सम्प कहते हैं। वो सम्प में एक सम्प पंप डाला जाता है, उसके लिए भी आपको पहले से प्रोविजन करना पड़ेगा। जैसे वो पंप को पावर सप्लाई लगेगा, तो यू नीड टू प्लान दैट वेल इन एडवांस के पावर सप्लाई आप कहाँ से लाना चाहोगे। अभी आपने जब वो पानी जमा कर लिया है, पंप डाल दिया है, तो पंप का पानी बाहर लाने के लिए आपको पाइपलाइंस डालनी पड़ेंगी। उस पाइपलाइन के रास्ते आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप पानी बाहर कैसे लेके जाएंगे उसे। सो दीज आर सम थिंग्स जो बेसिक चीजें हैं जो शुरू से ही एक एमईपी कंसल्टेंट या एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट आपको गाइड कर पाएगा, आपको कैलकुलेशंस दे पाएगा कि आपको इस साइज का सम्प बनाना है, इतनी अमाउंट का पानी आपके बेसमेंट में जमा हो सकता है और आपको इतना टाइम में बाहर निकालना होगा। सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से हियर कि ये तरीका है बेसमेंट्स को मेंटेन करने का फ्रॉम अ प्लम्बिंग स्टैंड पॉइंट। Okay, so that means we don't have to be worried about it कि अगर with the help of complete professional guidance अगर हम उस तरीके से उसको plan करें in a proper way, then even in flood like situation, because मुंबई में बहुत common occurrence है, there is always कभी थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाता है, पानी भर जाता है। So even in such situations we can have dry basement, if that is what I want to hear. Absolutely. Okay sir, thank you so much. Next I wanted to also ask you कि जब हम planning करते हैं even for the plumbing, so
do you need the plans to be done it along with the architect? Like जब architects plan देंगे तो उसके साथ ही एक प्लम्बिंग का जो प्लानिंग करना होता है, या एक बार कंस्ट्रक्शन हम चालू कर देते हैं उसके बाद भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं प्लान्स? प्लान जैसे जॉनसन ने भी पहले कहा एमईपी कंसल्टेंसी में आपकी जैसे आप जैसे पहली लाइन बना रहे हैं ड्राइंग पे, मेरा मानना है और आई बिलीव जो सरफराज जी और जॉन सर भी हैं दोनों भी एक्सेप्ट करेंगे, मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपका कंसल्टेंट आपके साथ होना चाहिए, बिकॉज योर कंसल्टेंट विल बी द राइट पर्सन, आपको बता पाएगा कि आपकी वाटर लाइंस कहाँ से आएंगी अंदर, आपको जो वाटर सप्लाई आना है किस साइज की लाइन आएगी, आपकी टैंक्स की साइजेस क्या होनी चाहिए, कहाँ आप बना सकते हैं टैंक, कहाँ नहीं बना सकते हैं आपकी टैंक कैसी होनी चाहिए, उसमें पानी आपको ये जो पानी है आप नहाने धोने खाने पीने इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस पानी को स्वच्छ और साफ रखने के लिए जो टैंक बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए। फिर वो वही कंसल्टेंट वही इंजीनियर आपको हेल्प कर पाएगा कि वो पानी को आपको पंप करना है, जो समझिए टेरेस पे ले जाना है या डायरेक्ट आपको आपकी फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में प्रोवाइड करना है, तो कैसी पंपिंग सिस्टम होगी, क्या साइज होगी पंप की, उसका पंप रूम कैसा होगा, पंप रूम में मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रखना होगा, ये एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट आपको शुरू से ही गाइड कर पाएगा। एट द सेम टाइम जब बिल्डिंग बन रहा है उसमें काफी सारी स्ट्रक्चरल चीजें बनाई जाती हैं, उसमें बीम्स डाले जाते हैं, कॉलम्स डाले जाते हैं, कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हमें at a later stage involve किया गया है as consultants, and the situations have been such कि हमें ऐसी situations हुई हैं जहाँ पे structural members बीच में आ गए, जैसे कॉलम बीच में आ गया हो, तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो राइट साइड में इमेज दिखा रहा है, पहले माना जा रहा था कि बीम साइज इतनी बड़ी नहीं होगी। एज अ प्लम्बिंग इंजीनियर आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड ऑन द बीम साइज, मगर जब डिजाइनिंग शुरू किया हमने सोचा कि ठीक है चलो अंडर फ्लोर हमारे जो ड्रेन पाइप्स हैं, हमारे जो फ्लोर ट्रैप्स हैं वो सारे चले जाएंगे, तब जाके हमें पता चला कि एक बीम बहुत बड़ा बीच में आ रहा था बाथरूम में, जिसकी वजह से हमें हमारा पूरा सिस्टम जो है वो शिफ्ट करना पड़ा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं, कुछ प्लानिंग होता है, प्लानिंग दिया जाता है कि आपको पाइप आपकी एक सर्टेन लोकेशन से नीचे लेके जाना होगा, बट जैसे बिल्डिंग बनने लगती है पता चलता है कि वो शाफ्ट की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी और आपको वहां एक पंप डालना पड़ा। तो ऐसे जो सिचुएशंस हैं जो पहले से प्लान नहीं हो सके, या पहले से एक आर्किटेक्ट या एक डिजाइनर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर फोर्स ही नहीं कर सकता है, पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है उन चीजों का, एक एमईपी कंसल्टेंट या प्लम्बिंग कंसल्टेंट आपको पहले से आगाह कर देगा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, आपको इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी या ऐसी ऐसी लोकेशन हमें देनी पड़ेगी। तो जो पाइप रूटिंग्स हैं ये सब हम पहले से ही बता देंगे इन्हें, ताकि ऐसा ना हो कि और कोई चीज वहां आ रही है और वो पाइप ही पास ना हो सके। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो प्लम्बिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे ज्यादा चीज हम जिस पे रिलाई करते हैं वो है ग्रेविटी, और ग्रेविटी से पानी नीचे जाता है। हमें बिल्डिंग से जब पानी नीचे लाना होता है तो ग्रेविटी की सबसे बड़ी जरूरत है। सो पानी ऐसी चीज है जो पाइप में से ही पास हो सकता है सेफली। आप नहीं चाहते हैं कि आपका पानी और कहीं से निकल रहा हो और कहीं जा रहा हो, इट हैज टू पास थ्रू द पाइप्स। इलेक्ट्रिकल में या काफी दूसरी इंजीनियरिंग में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इलेक्ट्रिकली वायरलेसली चीजें ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट प्लम्बिंग में ऐसा नहीं हो सकता है, आप पाइपलेसली पानी ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट यू डोंट वांट टू सी दैट ऐसा हो कि पानी आपका पाइप के बजाय और कहीं से आ रहा हो। सो उसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट को ऐसे हायर कर ले। सी ये और एक इमेज है जिसमें दिख रहा है, ये टिपिकली बहुत बार होता है। आई थिंक हमारे आर्किटेक्ट्स जो हैं, इधर डिजाइनर्स हैं, वो भी अग्री करेंगे कि टॉयलेट में ऑलरेडी प्लानिंग था कि WC एक तरफ आएगा, मगर नीचे के कॉर्नर में बीम आ गया जिससे पाइप घूम नहीं सकता है। सो ऐसी सिचुएशंस पहले से अवॉइड हो सके, प्लम्बिंग कंसल्टेंट विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू दैट। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्चुअली ये जो आपने 3D पिक्चर्स दिखाए हैं उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करते हो जब आपका प्लानिंग एंड जो बिल्डिंग का प्लान है दे डोंट गो इन सिंक। सो थैंक यू सर। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे छेड़ना था आज वो है फायर फाइटिंग का, एंड जॉन सर आई गेस यू कैन गाइड अस द बेस्ट ऑन दिस।
that when we talk about firefighting, so it is compulsory to have a firefighting system into your own building these days. But can you just tell us that which are the areas which are more prone to a fire, and what are the best methods by which the society can be self-reliant with respect to firefighting? Well, every area, all the areas, if it is not properly looked after, are prone to fire. But especially if you look at in a typical building where the kitchens, stores, especially where if there is a hazardous substance is stored, those kind of areas, or where gas cylinders are kept, are more prone to the fire. Or if there are any paper or similar combustible materials are strewn around all over the places, those are all prone to fire. Even the electrical systems, your wiring, if it is not protected, they are prone to fire. So these are all areas. Generally, we can speak about every area is prone to fire, but specifically these areas are to be specially looked into where fire can happen. Now, sometimes what happens is that the electrical systems are under-designed. If the cables are under-designed, or the wires are under-designed, or even the switchgear, the breakers and switches, if they are under-designed, what happens is that more current passes through them, then it becomes heated up, temperature rises, it may cause fire. Or if there is a loose connection in the cables or otherwise, the loose connection tend to rise the heat, temperature, and it can cause short circuits and causes fire. Now, these are the areas where people should be extremely careful when you are looking at firefighting system. Now, your second part of the questions was how is self-reliant, how people how can the society be self-reliant with respect to firefighting system? And people can be self-reliant. Yeah. Now, for that, installation of all the required fire protection equipment and the systems as per the codes, especially the National Building Code of India 2016, is very essential. Now, if you install all of them properly as per the various codes and as per our designs, our means the consultant's design, it will ensure that the building is self-reliant to contain the fire till a firefighter who is a professional arrives. Normally, when we look at a system which is designed within the buildings, they are capable of handling the fire to approximately about 30 minutes till the professional firefighters arrive. Now, it is very important that these things are installed. If there is, they are not installed, then you are not self-reliant. Right. Okay, next. With respect to the same point that when these things are installed, ये सारे जो भी equipments है, अगर ये installed है, how do we ensure that they work at the right time when it is required? Because since the day of installation and till the time a fire occurs into the society or a building, we will never use it, or we will never even go and touch it. So how to ensure that those equipments even work after maybe 10 or 12 or 15 years when it is required at the time of a fire? Well, if you look at it, if the codes itself mandate that you should have regular fire drills. A fire drill means that everybody should, the fire systems has to switch on, and they have to run properly as if there is a fire. The people should be evacuated. Those kind of full fire drill or a partial fire drill can be done. Now, actually, it is mandatory that you should have regular fire drills. Now, if you have the fire drills, what happens that if the equipment, say for example, firefighting pumps, if they are not working, if the motor is not working, or if the valves are closed, or if the hydrant is not functioning, or the sprinklers are not working, all these things can be attended when there is a fire drill happens. Now, it is very essential that a fire drill is conducted very regularly. Now, people always are reluctant to spend money on all these firefighting systems. Now, it's very important that you install all the firefighting systems at least as mandated by the courts. Now, one of my friends has always been saying, firefighting systems are our armed forces. Now, in the peacetime, we always find that armed force expenditure on armed forces are redundant.
people say how much of money is spent on defense armed forces, but when a war breaks out, you will see the usefulness of the armed forces and the money which is spent on the armed forces. The same goes for the fire fighting systems. You are seeing that if the fire doesn't happen, you are saying that all this money is spent, it is all sitting there. But the usefulness comes only when there is a fire. Right. So, Yes. right. So that's more important, that people should have the firefighting systems. They should have the drills, regular drills, fire drills, and make sure that everything works properly. Yes, yes. Thank you, जॉन सर. यही सेम सरफराज जी, मैं आपको भी सेम, ये हमारे जो सब व्यूअर्स हैं इनको थोड़ा हिंदी में वापस यही चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली हम देखते हैं कि नाउ जो फायर ब्रिगेड्स हैं जो बॉम्बे में होने चाहिए वो इतने बढ़ नहीं रहे हैं. मतलब लास्ट 10 साल में कुछ एक आध फायर ब्रिगेड हुआ होगा, या पहले जो 30 थे 31 हुए हैं, दैट्स ऑल. एंड उसमें भी जो ट्रैफिक इतना सब है ज्यादा है कि वहां पे फायर ब्रिगेड आने तक के लिए टाइम लग जाता है. तो इसमें कि बहुत हमको क्या करना चाहिए कि वो जब कुछ भी हो उसको पहले, या तो हम पहले फायर फाइटिंग सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए, एंड जब फायर लगे तो उसमें हमारे पास लगे हुए फायर सिस्टम, उसको कैसे हम ये वो टाइम पे यूज हो. मतलब जो ये पहले क्वेश्चन है उसी को आप थोड़ा वापस सरफराज जी हिंदी में थोड़ा जरा यू कैन जस्ट ब्रीफ इट आउट. फायर ड्रिल का बारे में और यस सरफराज जी. यस. इसमें सर दो चीज़ें हम जनरली फायर फाइटिंग या फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए फॉलो करते हैं. एक होता है NBC 2016 विच इज़ क्वाइट इलेबरेटिव, मतलब उसमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है विच इज़ इनफ आई थिंक फॉर अ बिल्डिंग, लाइक विच इज़ सफिशिएंट फॉर अ बिल्डिंग फॉर फायर फाइटिंग इन केस अ फायर इमरजेंसी अकर्स. जब भी कोई फायर का इंसिडेंट होगा उस वक्त फायर फाइटिंग सिस्टम कितना रिक्वायर्ड है उस फायर को कंटेन करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट देयर. बट जैसे आपने ये एज यू राइटली सेड कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और ये रीचेबिलिटी जो होता है एक्सटर्नल फायर इंजन का हमारी लोकेशन पर, हमारी सोसाइटी में, वो एक क्वेश्चन है एंड इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. इसीलिए लोकल फायर ऑफिसर, जो भी फायर ऑफिसर्स होते हैं, दे प्रोवाइड प्रोविजनल CFO NOC फॉर एवरी बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग के लिए. और इस फायर NOC में उनके सारे कंसिडरेशंस होते हैं कि हमको कितने मिनट का फायर फाइटिंग बैकअप प्लान करना है, लाइक 30 मिनट्स या 60 मिनट्स या उससे ज़्यादा. कोई रिमोट लोकेशंस होती हैं, जनरली सिटी में तो ऐसा नहीं होते केसेस, लेकिन कहीं पर अगर बाहर की तरफ कोई रिमोट लोकेशंस है तो वहाँ पर शायद उससे भी ज़्यादा दे नीड अ बैकअप. तो लोकल फायर NOC जो भी प्रोविजनल फायर NOC होती है उसके हिसाब से हम इस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं. इसमें जो भी ब्रीफ सिस्टम्स जैसे सर ने बताया कि हमारे हाइड्रेंट स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर हम लोग इसको इफेक्टिवली जैसे प्रोविजनल CFO NOC फायर NOC में है वैसे, या एटलीस्ट NBC 2016 में है वैसे, अगर हम इसको इंस्टॉल करें हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में, आई थिंक ये काफ़ी सफिशिएंट होते हैं इनिशियल फायर फाइटिंग के लिए. और अगर फायर को सोर्स पर ही सप्रेस किया जाए, मतलब जहां पर फायर ओरिजिनेट हुआ है, अगर उसी पॉइंट पर वो फायर फाइटिंग सिस्टम एक्टिव किया जाए, मतलब उसको जैसे यूज करना है उसको वैसे यूज किया जाए, तो आई एम वेरी श्योर कि ये फायर स्प्रेड आउट नहीं होगा. मतलब एटलीस्ट आप 80-90% केसेस में आप उसको कंटेन कर पाएंगे. जैसे सर ने राइटली सेड, सर ने जैसे बताया कि मॉक ड्रिल्स रेगुलर इंटरवल्स पर होने चाहिए, लाइक प्रिफर्ड है कि एटलीस्ट मंथ में एक बार या 3 महीने में एक बार ये मॉक ड्रिल्स हो, ताकि हमको फायर फाइटिंग सिस्टम की हेल्थ के बारे में श्योरिटी हो कि इट्स इन गुड हेल्थ, ताकि जब भी ये फायर इंसिडेंट हो तो हम इफेक्टिवली उसको उसी वक्त कंटेन कर पाए. इनफैक्ट हमको एक्सटर्नल फायर इंजन्स या एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी अगर हम उसको सोर्स पर ही कंटेन कर पाए तो, जिसमें हमारे अलग अलग सिस्टम है, हाइड्रेंट सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम से और एक्सटिंग्विशर से ब्रॉडली, और आज जैसे ड्रेंचर्स वगैरह हमको पार्किंग एरियाज में लगते हैं. मतलब एक टाइमली उसको वापस एक बार करना पड़ेगा, और उसका थोड़ा एक्सपेंस आएगा. जैसे सर ने बताया कि जैसे हर एक कंट्री भी एक आर्म फोर्स के लिए एक बजट रखती है, डिफेंस के लिए एक बजट रखती है, वैसे ही बजट हमको हमारी सोसाइटी में भी एक इसको अलग रखना पड़ेगा, एंड इसमें खर्चा एक्सपेंस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बेसिकली हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है. सो थैंक यू वेरी मच. आपने यस. इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर, वार का जैसा वी डोंट नो फायर कब होगा नहीं होगा या कुछ पता नहीं है, इसलिए तैयारी होना दैट इज इम्पोर्टेंट. यस. इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम इज इक्वली इम्पोर्टेंट. मतलब उसको भी उतना ही वेटेज है,
क्योंकि जैसे सर ने बताया कि गैस लीकेजेस वगैरह ये इश्यूज होते हैं, तो आजकल फायर एनओसी में गैस डिटेक्टर्स किचन में एज अ रिक्वायरमेंट होता है। तो वी शुड इनफैक्ट अगर एनओसी में नहीं भी मांगा है तो एज अ रिक्वेस्ट हम लोग ये पुट ऑन करते हैं कि वो उसको फॉर अ सेफ्टी पर्पस उसको इंस्टॉल किया जाए, ताकि अगर गैस लीक डिटेक्टर्स किचन में होंगे तो दैट कैन बी कंटेन्ड, या अपार्टमेंट के अंदर अगर हम डिटेक्टर्स नहीं लगा रहे हैं तो एटलीस्ट लॉबी में डिटेक्टर्स हों। Yes, yes. Thank you. Yes, Nupur, you can take over. थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आपको वही पूछने वाली थी कि डिटेक्शन सिस्टम भी कितने इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बताइए, बिकॉज फाइट करना सेकेंडरी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव द बेस्ट एंड अपग्रेडेड। अभी आप भी अपनी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सो यू हैव टू सी टू इट कि आप जो भी आने वाला प्रॉब्लम है उसको पहले ही आप प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स आप पहले लगाइए। एंड व्हेन इवन आफ्टर दैट इफ इट अकर्स देन वी शुड हैव अ अपग्रेडेड फायर फाइटिंग सिस्टम, जिससे हम और हमारी फैमिलीज हमेशा सेफ रहे अपने घर में। सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग ऑन दैट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे चिंतन जी से ही पूछना है। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के बारे में आजकल हम बहुत सुनते हुए आ रहे हैं, तो प्लीज आप हमें बताइए कि ये कैसे है और कैसे हम इसे अपने सोसाइटी के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसका हम फायदा कैसे ले सकते हैं। राइट, सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अभी वैसे ही बारिश आने वाली है, 2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हमें निसर्ग ने भी थोड़ा बहुत डरा के रखा था कि तो हम इतनी बारिश होगी कि जमा करें क्या करें, उस पानी का कितना पानी आएगा हमें नहीं पता था। बट एनीवेज इट वाज गुड कि वो बॉम्बे को बाईपास करके गया, मुंबई को बाईपास करके गया। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू। कोई कल की बात नहीं है कि हमने नया नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको हजारों सालों से देखा जाएगा। कम से कम मैंने जहां तक देखा है, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स ऐसी जगहों पे देखे हैं जो 5-5, 6-6 हजार साल पुरानी जगहें हैं। सो एक कोई नई बात नहीं है ये। आप अभी महाराष्ट्र में अपने यहाँ बहुत सारे फोर्ट्स हैं, जो प्रतापगढ़ और कई ऐसे गढ़ हैं, वहां पे जाएंगे यू विल फाइंड दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। और मैं चैट में भी देख रहा हूँ कि मेनी पीपल हैव बीन सेंडिंग क्वेश्चंस अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेसिकली 3 तरीके हैं। सिर्फ आपको बेसिकली करना क्या है, बारिश का पानी जमा करना है और उसे आप फिर से यूटिलाइज कर सकें, ऐसी संभावना क्रिएट करनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, इज मोर ऑफ अ कम्युनिटी थिंग। आप शायद आज जो पानी जमा कर रहे हैं, हो सकता है कि आप टैंक में जमा जितना कर सकते हैं वो करेंगे, तो आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं। बट अब जो सॉइल में, बहुत बार क्या होता है, आज हम देख रहे हैं नए नए डेवलपमेंट्स में, नई नई बिल्डिंगों में सबको क्लीन ग्राउंड चाहिए एकदम, या हम पेवर टाइल्स लगा देते हैं या कंक्रीटिंग कर देते हैं ताकि सारी जमीन उबड़ खाबड़ नहीं रहे। इवन हमारे रोड्स हमें नहीं चलते हैं कि कोई कुछ कचरा हो या कुछ भी उबड़ खाबड़ हो। सो हम हर स्क्वायर इंच जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि पूरा फ्लैट हो जाए। सो जो बारिश का पानी जमीन पे गिरता है, इवेंचुअली क्या होगा, फिर इस फ्लैट जमीन पे से जाके बह के सीधा समुद्र में मिल जाएगा। तो जो मीठा पानी बरस रहा है हम पे, उसे हम खारा बना देते हैं। तो द आइडिया ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल। सबसे पहला तो उसमें ये करना है, हमें जो बारिश बरस रहा है उसे जमीन में फिर से जाने देना है, क्योंकि जमीन में हम जो जमीन में पानी जा रहा था उसे ही नहीं जाने दे रहे हैं। फिर हम चाहेंगे कि हम ग्राउंड वाटर निकालें और उसे यूज करें। कई लोग, मैंने चैट में भी देखा कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वाटर टेबल बहुत हाई है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें। अब ये वाटर टेबल एक ऐसी चीज है जो एक सब सॉइल लेवल का वाटर टेबल होता है, एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज योर अंडरग्राउंड एक्विफर जो होता है, विच इज कम से कम 300, 400, 500 फुट नीचे होता है, जहां से हम बोरवेल्स निकालते हैं। सो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सब सॉइल वाटर रिचार्ज कीजिए, उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा एक इमेज दिखाऊंगा जो मेरी बुक में से ही है। आई रिटन अ बुक नोन एज प्लम फॉर जेन, जिसमें मैंने ये सब चीजें डाली हैं। सो जो आपकी ट्रेंच होती है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाते हैं, उसकी ट्रेंच को ही हम ऐसा करते हैं कि तीनों साइड जो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, जो नीचे हम फाउंडेशन बनाते हैं जिसमें से पानी बह के दूसरे म्यूनिसिपल सीवर में, म्यूनिसिपल ड्रेन में चला जाता है और समुद्र में मिल जाता है। उसमें हम ये करते हैं कि नीचे से हम खुला रखते हैं एंड बीच में फिल्टर मीडिया डाल दिया जाता है, जिसमें कोर्स मेटल पत्थर होते हैं, सैंड होती है, और उसके ऊपर नायलॉन नेटिंग रखा जाता है ताकि वो ट्रेंच में से भी कुछ पानी सब सॉइल में जा सके।
अब ये ट्रेंच जाके जुड़ती है एक बोरवेल रिचार्ज पिट से। जो बोरवेल होता है आपका, उस बोरवेल के अगल बगल में अराउंड सराउंडिंग द बोरवेल एक बोरवेल रिचार्ज पिट बना दिया जाता है, जो 2 मीटर 3 मीटर गहराई तक हो सकता है और एक छोटी सी टैंक के समान ही बिहेव करता है। इसमें जो ट्रेंच में से सारा पानी आता है वो बोरवेल रिचार्ज पिट में जाता है और उसमें भी इस तरह के फिल्टर मीडिया होते हैं, सैंड होते हैं, पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं और उसके बीच में आपका बोरवेल का जो पाइप होता है उससे पानी आपके एक्विफर में जाता है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले जब ट्रेंच बनाई हम उसे सब सॉइल में डाल रहे हैं। अगर आपके सब सॉइल में आपका जो सब सॉइल का वाटर टेबल काफी हाई है तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो बह के जाएगा बोरवेल रिचार्ज पिट में और वो बोरवेल रिचार्ज पिट से जो भी ओवरफ्लो होगा वो बाहर निकलेगा। अभी ये हम ये जो देख पा रहे हैं इस वक्त, जो इमेज देख पा रहे हैं इज ऑफ अ स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें दोनों साइड में ट्रेंच बनाए हुए हैं। ये ट्रेंच आप परकोलेशन ट्रेंच समझ लीजिए जिससे पानी जमीन में जा सकता है और उसके साथ साथ एक बोरवेल रिचार्ज पिट भी दिया जाता है जिससे अब जमीन में एक्विफर में वो पानी जाने दे रहे हैं, जिससे आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो एक्विफर है, वो रिचार्ज होते रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, आपको ध्यान रखना है कि गंदा पानी जो ग्रीस वाला है, जो कार में से ऑयल्स गिरते हैं, ये सब इसमें नहीं जा पाए। द आइडिया ऑफ हैविंग द फिल्टर मीडिया देयर वही है कि आप गंदा पानी जमीन में वापस नहीं डालें ताकि वो उसको आप प्रदूषित नहीं करें। तीसरा तरीका होता है जो बहुत सारे लोगों का मानना है, इज टैंक्स में कलेक्ट करना रेन वाटर। अभी टैंक्स में कलेक्ट करने के लिए भी रेन वाटर आप 3 महीने बारिश होती है और 3 महीने में एक मैंने और मेरे पिताजी जो 3rd जनरेशन है, हमने कैलकुलेशन किया था कि जो मुंबई में जितनी बारिश होती है अगर आप उस सारी बारिश को कलेक्ट कर पाते तो ऐसा होता कि मुंबई शहर को 2 साल तक पानी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम हर एक बूंद जो गिरती है मुंबई पे वो तो कलेक्ट कर नहीं सकते। वो तो दूर की बात है कि हमारे प्लॉट में भी सारे हम पूरे का पूरा पानी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उनका रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी टैंक अगर बनाते हैं जो कलेक्शन करने के लिए, वो टैंक इतनी हो कम से कम कि आपका 1.5 से 2 दिन का जो फ्लशिंग रिक्वायरमेंट है उसमें से निकल पाए। सो फ्लशिंग रिक्वायरमेंट बताना चाहूंगा इज 45 लीटर्स पर पर्सन पर डे इन एनी रेसिडेंशियल प्रीमाइस। तो उस बेसिस पे आपको आपकी टैंक साइज इतनी बनानी होगी। अभी आप ये जो पानी भी जमा करते हैं उसके लिए आपको एक एडिशनल टैंक बनानी पड़ेगी जिसका एक नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, एक सिविल कॉस्ट है, मगर उस टैंक को मेंटेन करना बारिश के 3 महीनों बाद वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आप वो बारिश का पानी 3 महीने तो बारिश तो बरस रही है, आप जमा कर रहे हैं, उसको आप कुछ महीने शायद 1-2 महीने और आप उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करके फिर रीयूज कर पाओगे, रिसाइकल करोगे। उसके बाद इवेंचुअली आपकी वो टैंक खाली हो जाएगी और एक पतली सी परत पानी की हमेशा उसमें बनी रहेगी जो एक मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन सकती है। सो यू विल ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि आप जब ऐसी टैंक बनाते हैं रेन वाटर कलेक्शन के लिए उसे प्रॉपरली क्लीन और सैनिटाइज करना चाहिए बारिश की सीजन के बाद में। वेरी गुड इंसाइट एक्चुअली। जो आपने लास्ट में बताया कि व्हेन द वाटर गेट्स ओवर तो उसमें भी क्लीनलीनेस रखना एंड सैनिटाइज करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगेन फिर मस्कीटोज का इशू ना स्टार्ट हो जाए सोसाइटी में। सो इसी से रिलेटेड सर एक और चीज है कि ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे रेन वाटर कैन बी रीयूज्ड। What about sewage treatment plant? So that is also about recycling the water and using it again. So how do we implement that in our project? जैसे ही मैंने रिसाइकल वर्ड यूज किया दिमाग में मेरे इसमें भी ऐसे एक बल्ब चमक उठा के एसटीपी के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं। सो वेरी गुड, यू पिक्ड अप द वाइब। सो एसटीपी एक ऐसी चीज है कि जब आपका जो सूवेज जनरेट होता है सोसाइटी से, जो गंदा पानी जिसे कहते हैं लोग, उसे रिसाइकल करके आप रीयूज कर सकते हैं। एक अगर बैकग्राउंड दूं तो सिंगापुर जैसा एक छोटा सा शहर है जो एक देश है मुंबई की साइज का करीब करीब, उसे उसका पानी खरीदना पड़ता है, उसके पास खुद का पानी नहीं है। सो सिंगापुर ने अपनी कॉस्ट कट डाउन करने के लिए सबसे पहले ये सिस्टम अपनाया था कि हम सूवेज ट्रीटमेंट सिस्टम डाल देंगे हमारे यहाँ, एंड उधर उस पानी को इस हद तक ट्रीट करते हैं कि आप वो पानी पी सकते हैं। एंड मैंने वो पानी कम से कम 1-1.5 महीना जब मैं वहां रहा था पिया है। सो आई एम हेल्दी एंड फिट एंड फाइन।
एंड उससे कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट वो पानी इतना प्योर था कि दे प्रोवाइड इट एज बॉटल्ड वाटर, जिसको ब्रांड किया गया एज न्यू वाटर. सो कई बार हमने देखा है कि लोगों को बहुत एक माइंडसेट हो जाता है कि अरे ये तो सूवेज ट्रीटेड वाटर है यार, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत गंदा है, इसको गंदा पानी माना जाता है. सो नेचर में भी वही होता है. अगर हम पर्यावरण में देखें, अगर प्रकृति में देखें, तो एक्चुअली आपका जो गंदा पानी जाता है वो रिसाइकल होके एक वाटर साइकिल से होके वापस शुद्ध होके आपको आता है. सो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी उसी तरह होते हैं. they basically are plants which speed up the process of nature. नेचर का जो प्रोसेस है उसको तेजी से काम करते हैं. उसमें बहुत तरीके की टेक्नोलॉजीज होती हैं. वो भी मेरी बुक में है, बट अभी मैं उसमें वापस नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज दैट विल टेक मोर टाइम. तो जो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आपका सवाल है, ये जो रिसाइकलिंग मेथोडोलॉजी है इज अ वेरी गुड थिंग कि आप पानी उसको रिसाइकल कर सकते हैं एंड आपका कम से कम 50 to 60% वाटर जो आपका रिक्वायरमेंट है डेली का, आप रिड्यूस कर सकते हैं. एंड उसमें बहुत तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज तो विविध प्रकार की हैं ही. आप उस पानी को आइडियली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रिकमेंड करती है, वो कहती है कि आप उस पानी को एटलीस्ट फ्लशिंग पर्पसेस के लिए यूज करें, जो आपका 33 to 40% रिड्यूस हो जाएगा. क्या सेंस बनेगा अगर मैं पानी फिल्टर कर रहा हूँ, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे पानी प्यूरिफाई करके अच्छी ग्रेड का पानी देती है, वो मैं सिर्फ फ्लश कर डालूं तो इट इज अ क्रिमिनल वेस्ट, राइट? सो वो अवॉइड करने के लिए जैसे कि एटलीस्ट आप सूवेज ट्रीटेड वाटर फ्लशिंग पर्पसेस के लिए यूज करें, एंड दैट कैन रिड्यूस द लोड ऑन द एग्जिस्टिंग म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ओके सर, तो ये जो प्लांट्स है लाइक सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो हम प्लानिंग करेंगे, सो कैन वी डू दैट फॉर एनी साइज ऑफ अ प्लॉट? लाइक अभी जब हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो प्लॉट साइज वेरीज फ्रॉम 400 स्क्वायर मीटर जितना छोटा भी प्लॉट रहता है, एंड फिर हम 10,000 स्क्वायर मीटर तक भी जाते हैं. तो ये हर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स बिकॉज ऑफ द साइज? ओके, पानी बचाना तो कोई भी कर सकता है. अगर मैं एज एन इंडिविजुअल भी करना चाहता हूँ पानी बचाना, तो दैट इज अ गुड थिंग टू डू. बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कोई भी छोटा सा एक घर भी हो, एक सिंगल ड्वेलिंग हो, सिंगल पर्सन ड्वेलिंग, वो भी कर सकता है. बट द रूल्स रिक्वायर, जो हमारे मुंबई के जो MCGM के रूल्स हैं, वो कम से जो छोटे से छोटे प्लॉट्स अगर पकड़े भी जाए तो 1000 स्क्वायर फुट से कम नहीं होते हैं. तो BMC का स्ट्रिंजेंट ऐसा रूल है कि 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर कुछ भी हो, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट करना है. सो रियली स्पीकिंग, आप करना नहीं भी चाहें तो यू हैव टू डू इट. बट व्हेन इट कम्स टू सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके 3-4 पैरामीटर्स हैं. सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर जैसे मैंने कहा कि आप छोटे सिस्टम के लिए भी करना चाहें, छोटे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए करना चाहें, कर सकते हैं. बट कई बार जो उसका कॉस्टिंग होता है एक छोटे से यूनिट के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग बैक. बट व्हेन इट कम्स टू लार्जर कॉम्प्लेक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में जिसे अप्रूवल लेना पड़ता है, जो 2 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर हैं, उनको कंपल्सरीली मैंडेटरीली करना पड़ता है. देयर आर प्रोजेक्ट्स विच आर हाई राइज प्रोजेक्ट्स, जो 70 मीटर्स के ऊपर होते हैं, बिल्डिंग्स जिनको HRC में जाना पड़ता है, हाई राइज कमेटी में BMC की, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है. कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या कोई बिल्डिंग्स हैं ऐसे जिनको ग्रीन बिल्डिंग होने की वजह से टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं या टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, उसमें तो बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि आपको करना ही है, बिकॉज यू विल बी रिड्यूसिंग द लोड. एंड देन देर आर सर्टन सिचुएशंस के कई जगहों पे, मुंबई शहर में भी कि म्युनिसिपल ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है. सो आप आपका सूवेज डिस्पोज कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे में भी आप सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट डालेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनसाइट्स. अगला सवाल मुझे सरफराज सर से पूछना था कि सर अभी इतनी सारी ये जो भी टेक्निक्स है या टेक्नोलॉजी है, आपका जो इंजीनियरिंग है, जब हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं बिल्डिंग में, अभी हम जो मेंबर्स रह रहे हैं सोसाइटी में, उनको हम किस तरीके से ये एजुकेट कर सकते हैं? या ऐसा कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन या ऐप ड्रिवन सिस्टम है, जिससे हम जो यूजर है, जो एंड यूजर है, उनके लिए ये आसान बना सके समझना कि उनके बिल्डिंग में ये जो लेआउट बिछा है, इसका वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं?
जैसे कल चिंतन दैया जी भी हमको बता रहे थे कि हम लोग छोटा से छोटा मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसके साथ हमको एक बुकलेट मिलता है जिससे हमको पता चलता है कि लाइक उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो हम जब एक फ्लैट परचेज करते हैं तो इट शुड बी लाइक ये एक होना चाहिए चीज़ कि हमें कुछ ब्रोशर्स मिले, कुछ MEP ड्राइंग्स मिले या MEP के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिले पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी के बारे में, जिस जो हमको हेल्प करे कि लाइक हमारी सोसाइटी में जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल हैं, मेड बी प्लम्बिंग, मेड बी इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, जो भी सर्विसेज इंस्टॉल्ड है वो कैसी हैं और मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो पूरा एक इंसाइट इनको मिले। सेकेंडली, जैसे वेबसाइट्स वगैरह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वेबसाइट जनरेशन होता है, तो इफ दीज इंफॉर्मेशन कैन बी मेड ऑनलाइन, इनको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए तो इनको हार्ड कॉपीज वगैरह मेंटेन करने का भी हेडेक कंप्लीटली वे ऑफ हो जाता है। हमको पता होता है कि हमारी सोसाइटी में ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे हैं, टैंक्स वगैरह की लोकेशन कहाँ पर है, क्या साइजेज हैं, पंप्स वगैरह कैसे हमारे इंस्टॉल्ड है, क्या सिस्टम बेसिकली हमने इंस्टॉल किया है, यूजी ओवर टैंक, देन हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, CCTVs, ये सब, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये हम इसको आप ऑनलाइन करके लाइक मेंबर्स वगैरह जो भी होंगे सोसाइटी के, दे कैन गेट एक्सेस, उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है। और बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब आज की तारीख में काफ़ी सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में अवेलेबल है जो कि हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, लाइक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है, VDPs हैं, और इंटरकॉम सिस्टम्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी सर्विलेंस है, एक्सेस कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमारी सोसाइटीज़ में। ये कुछ कॉस्ट तो ऐड करती है डेफिनेटली, लेकिन दिस विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, हमारे लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक बिल्डिंग में होना चाहिए, मतलब तो ये सारी चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए। और पोस्ट कोविड हमारा जैसे टचलेस टेक्नोलॉजीज वगैरह जो अभी आएंगी अपकमिंग, जैसे लिफ्ट है, एलिवेटर्स वगैरह हैं, फिर और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी पाइपलाइन में है, लेकिन इट विल कम, लाइक इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह के बारे में भी काफ़ी कम अवेयरनेस है, स्पेशली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में और अपार्टमेंट्स में, कि हम टचलेस स्विचेस यूज़ करें। तो वो अभी शायद पोस्ट कोविड ये सारी चीज़ें नेचुरली इम्प्लीमेंट होगी। वही, बिकॉज अभी जैसे कोविड का अभी पोस्ट कोविड एरा चल रहा है जहाँ पे पीपल आर ट्राइंग टू मेंटेन डिस्टेंस, एंड पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे भी उनको कहीं पे भी हैंड यूज करना है तो दे अवॉइड। तो किस तरीके की टेक्नोलॉजीज बिल्डिंग में ही हम अपना सकते हैं, सो दैट वुड बी समथिंग बेटर इफ मोर टेक्नोलॉजीज फॉर टचलेस मतलब यूज ऑफ अ लिफ्ट, या फिर अगर डोर ओपन करना हो तो वो भी अगर हम यूज कर सके तो सर नेचुरली अभी ये मोशन सेंसर्स वगैरह भी शायद या हमको प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल करने ही होंगे ताकि डोर्स वगैरह को हमको टच नहीं करना पड़े। राइट 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 राइट। ऑल्सो सर, अभी अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो अभी आपने MEP एंड प्लम्बिंग के बारे में भी सर ने बताया, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, पर ऐसे क्या मतलब जो बेसिक हमको लेआउट डिजाइन करना है, दैट वी हैव टू हैव अ टॉप नॉच डिजाइन, नो डाउट, पर ऐसे और क्या प्रोडक्ट्स है या ऐसी और क्या तकनीकें हैं जो शायद कॉस्ट में ज्यादा ऐड ना करे, मे नॉट बी वेरी मच कैपिटल इंटेंसिव, बट उस पे थोड़ा अगर हम ज्यादा स्पेंड करें तो वी कैन गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट इन अ प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट इज डन बाय द होम ओनर्स एंड द होम बायर्स देमसेल्फ, तो उनका ही घर है, वो खुद बना रहे हैं। तो ऐसी कुछ यूनिक चीजें हैं या यूनिक प्रोडक्ट्स है जो अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट? जी, इसमें स्पेशली जैसे हम एडवांटेज उठा सकते हैं सोलार से, सोलार PV और हॉट वाटर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हॉट वाटर। नेचुरली ये कैपिटल कॉस्ट होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा और आप सेंट्रलाइज हॉट वाटर सिस्टम अगर सोलार के थ्रू प्लान कर सकें तो आपका नेचुरली वो गीजर का कंजम्पशन कम होगा, तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बेनिफिट पास ऑन कर देंगे। वैसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे चिंतन जी ने बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, नेचुरली आपका वाटर कंजम्पशन आप उसको कम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स भी होते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट के थ्रू भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर हम एक सॉलिड वेस्ट का, गार्बेज का अगर हम कुछ प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं। देयर आर एजेंसीज जो वो प्रोसेस्ड वेस्ट जो होता है उसको बाई करती हैं, इवन ड्राई वेस्ट वगैरह भी कलेक्शन करते हैं, तो दे कैन गिव यू रेवेन्यूज आउट ऑफ दैट।
Okay, ये right. छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इट कैन बी बेनिफिशियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन केस ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट. राइट, मैं यही अभी व्यूअर्स को थोड़े इंटरवल्स में बता रही थी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे हम इनकम जनरेट कर सके. तो उसमें सोलर पैनल आ जाता है, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, और एक और बहुत अच्छा टॉपिक है दैट इज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन. क्योंकि आजकल ये सारी चीजें जब आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने अपना खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बढ़ाते हो, और आपकी बिल्डिंग को भी यू टेक इट टुवर्ड्स द ग्रीन लाइफस्टाइल. तो इसके ऊपर ये जो 3 टॉपिक है, इस पे हमको एक डिटेल सेशन सर रखना ही पड़ेगा, आप सबको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज ये टॉपिक इतने डेप्थ में जा सकते हैं, या इस पे भी हम इतना बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं. इसीलिए ये टॉपिक पे हम एक और टॉक शो लेके आएंगे जरूर. बट सर, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा और थोड़ा हमको बता सके, ताकि हमको थोड़ा एक आइडिया है कि व्हाट इट इज, तो अच्छा रहेगा. I request John sir to take this up because Yes, वो yes, ज़्यादा sure, knowledgeable yes. हैं. Yeah, I will. I mean, as Nupur, you have already made a statement that it is much beyond the scope of this webinar, because the green building is in scope and versus is much larger subject which has to be specifically discussed in one meeting itself, one webinar itself. Right. But broadly speaking, now if you look at it, green building provisions and certification is done by separate agencies like Green Building Council, and there are agencies, LEED. If you look at the LEED, there are 2-3 agencies internationally. If you look at it, those are the agencies which look at the viability of a project and ways and means of getting the certification. Now, broadly speaking, green buildings are based on energy efficiency and sustainability. And in order to get the certification, the equipment and systems shall conform to the parameters which are set by the green building provisions. Now, in their certification process, they list a number of items, some 62 or so items, if I remember correctly. Now, you have to meet those 62 items, and if you implement all of them, you have different categories of certification. There are 3 categories, which are silver, gold, and platinum. Now, if you look at our building designs, MEP designs, most of the normal provisions in the buildings, like if you provide LED lights or STP, or if the waste management, solid waste management, if you consider all these aspects, that may be sufficient to achieve a silver certification, because the silver certification, the requirements are at a lower scale. But for gold and premium certification, there are more stringent provisions are there, starting from even the site selection, and also when you remove the topsoil, it has to collect and separately store it and then bring it back. And so you should not lose the topsoil. Then about the construction materials, there has to be of highly efficient standards, different materials. And also, I mean, if I look at in HVAC, it also speaks about air quality standards and various energy decreasing construction methods, and the equipment selection, the air conditioning systems or any other, these are all to be energy efficient. You have to select it to achieve gold and platinum certifications. Now, as I said, generally, very. Oh, as I generally said, Okay, call it. As I've generally said, this is beyond the scope of this webinar. You should keep a separate one, then you can go through each levels of certification. All these 62 items can be looked into it. Construction, equipment, pressure, all these aspects can be looked into it. But you can't speak it in a condensed form of 2 minutes and all that. Yeah, exactly. There are so many things into this, and also जो green building का concept है sir, वो इतना नया है, and सब लोग actually जानना चाहेंगे, तो audience से भी बहुत सारे सवाल रहेंगे इसके लिए. Also for today's topics, there are many questions which have poured in for with respect to rainwater harvesting systems. So I would like to start with the questions. कि
is there any, sir, with you only, with respect to firefighting, I wanted to ask, are there any specific type of firefighting, fire extinguishers which should be installed in a high-rise building? So high-rise buildings are the same. Firefighting is the same. Water-based firefighting is the general applied firefighting system. Water is the best fire extinguishers. Now, all types of buildings, whether it is high-rise, tall building, medium, or otherwise, the National Building Code of India 2016 very elaborately gives what are the requirements in different types of buildings. If you look at it, part 4 of the NBC is dealing with only fire protection systems. Now, out of that, there is a table called Table 7. The Table 7 lists out the requirements of firefighting systems for various types of buildings, and within that types, various categories. Now, if you look at the residential buildings, which you are now currently talking about generally, Right. residential buildings fall under category A, if I am not mistaken. In category A, there are different categorization which goes by the height of the buildings. Now, there are one category is below 15 meters height, then 15 to 35, 35 to 40, 40 to 60, and above 60 meters. Now, in each category, there are different provisions made. You have to install all those kind of provisions. These are all water-related, like hydrants and sprinklers, and fire detection systems. Then, especially for tall buildings, instead of firefighting, there are evacuation systems are very important, because to evacuate the people, there has to be smoke-free and fire-free exit areas, like the staircases or the elevators has to be pressurized to make sure that smoke does not enter into those exit areas. So these are the provisions which are to be made. Now, if you look at special areas like electrical rooms or data centers or server rooms and all, there are special categories like flooded systems like NOAC 1230 or FM 200. These are all gases which can be, as the fire happens, it can be released and it extinguishes the fire. Because in these kind of areas, water cannot be used as a medium for firefighting. Now, it's not necessary, it's not specifically applied to the tall building or medium building or otherwise. It's specifically applied for the type of materials or type of areas which are to be safeguarded, like electrical rooms or data centers and all that. Where water falls, it will be creating problems. थैंक यू वेरी मच सर, जॉन सर. चिंतन भाई, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हार्दिक मामनियानी जी ने पूछा है कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो गुड है, वेरी गुड है. आपने एक क्वेश्चन भी लिया, एक पॉइंट भी दिया कि अगर कोई खराब पानी अगर कुछ है आपका, जो कि ये है गाड़ी का वगैरह कुछ ऐसा जाएगा, अगर ऑयल का वाटर, तो उसको समझो गया, एंड हाउ अगर वो टीडीएस लेवल उसका समझो कि नहीं है प्रॉपर, तो उसको प्योरीफाई हो सकता है कि नहीं? इज देयर एनी सिस्टम कि वो प्योरीफाई हो सकता है? बिल्कुल. See, whenever you're using a groundwater, whenever groundwater is being used, it is always necessary, वो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसका वाटर टेस्ट करवाएं. बिकॉज बहुत बार कई बार होता है कि आपका पानी कहाँ से डाउनस्ट्रीम आ रहा है या कहाँ अपस्ट्रीम जा रहा है आपको पता नहीं है अंडर फ्लो. एटलीस्ट आप नदी में देख सकते हो कि नदी यहाँ से शुरू हो रही है वहां खत्म हो रही है, बट अंडर जो एक्विफर है आपको पता नहीं है कहाँ से कैसे आ रहा है. सो कभी भी अगर आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो गया है किसी वजह से, बिकॉज देयर हैव बीन ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पास्ट में, जैसे वापी जैसे शहर हैं जो इंडस्ट्रियल रह चुके हैं पहले, वहां पे 50 साल पहले लोगों ने अपना कंटेमिनेटेड वाटर डिस्पोज करने के लिए ग्राउंड में डाल दिया था उसे, बिकॉज उनको पोल्यूशन बोर्ड से बचना था. उसका जो रिजल्ट है आज की जनरेशन अभी तक वहां भुगत रही है कि 50 साल के बाद भी आज भी वहां का ग्राउंड वाटर लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं. सो इवन जब हमारे यहाँ भी यूज करते हैं मुंबई में, जब भी आप ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि आप उसका एक वाटर टेस्ट कराएं, जो एक बहुत इनएक्सपेंसिव चीज है, और उसको आपको प्योरीफाई करके, अगर समझिए उसमें बहुत ज्यादा कंटामिनेंट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
तो आपको उसको प्योरीफाई करके ही यूज करना होगा, और उसके प्योरीफाई करने के तरीके हैं बिल्कुल, अनलेस कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें आ गया है, या बहुत सारा हाई TDS लेवल है जो कहीं कहीं कुछ है कि जनरली जो वाटर लीकेजेस होते हैं या डैमेजेस जो आते हैं या बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग का उसमें इफेक्ट करता है पूरा। तो ये जो प्लम्बिंग बेसिकली मेन ऑफ द रीजन है, जो प्लम्बिंग जो पानी है या जो अपना सीवेज वाटर है या उससे ही होता है। तो हाउ टू मेंटेन दैट कि वो सोसाइटी आज जनरली हम देख रहे हैं कि 60 साल कोई भी एक RCC स्ट्रक्चर बिल्डिंग चलना चाहिए मिनिमम, दैट इज व्हाट द एज पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 30 साल 25 साल में बिल्डिंग का हालत खराब हो रहा है, या तो मेंटेन नहीं हुआ या इसकी वजह से, या जो मेन एक मेजॉरिटी ऑफ द रीजन जो लीकेजेस है ये एक वाटर पाइप्स के वजह से होता है। तो हाउ दैट वी कैन अवॉइड, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, जो सोसाइटी मेंबर्स है ऑलरेडी बन चुकी है या आगे 2 साल में अभी बन चुकी है या आगे जो नई बनने वाली है या बिल्डिंग अभी जो नए बना रहे हैं उनके लिए कैसे, हाउ डू यू हाउ व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर देम? मैं इधर एक चीज करेक्शन करना चाहूंगा कि ये जो लीकेजेस होते हैं वो प्लम्बिंग की वजह से नहीं होते, वो इंफीरियर वर्कमैनशिप ऑफ प्लम्बिंग की वजह से होते हैं, या इंफीरियर मटेरियल यूज किया गया है जो लोग टू यू से कि जो बेसिकली दिस इज व्हाट द होल सेल्फ डेवलपमेंट का कांसेप्ट है हमारा, जो इसमें कि जो डेवलपर है वो प्रॉफिट के लिए जाता है, यहाँ पे जो सेल्फ डेवलपमेंट जो सोसाइटी जा रही है वो खुद ओनर है, वो खुद वहां पे रहने वाला है। सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस मच मोर देन दैट व्हाट द डेवलपर इज लुकिंग केयर। सो ये इस पे थोड़ा ध्यान देना है। सो ओके सॉरी टू इंटरप्ट यू एंड यू कैन कंटिन्यू, सॉरी। सो बेसिकली वही था। I want to just add a few, Chintan, if you don't mind. Yeah, sure, please. Yeah, you know, it's very important that most of the times, especially if a builder developed a society, what we have noticed is that you may design the best of the systems as a designer, but when you go and see what is installed, it could be completely different from that, because the project manager takes decisions without consulting the designer and takes own decisions. Now, it is very important that especially for self-development societies, to employ a very competent project management agency or a project manager who has got knowledge about all this, so that the intent and purpose of the designer is executed fully and without any change. Now, as Chintan said, the low quality, it may be sometimes cutting the corners. Now, that may happen in a builder-developed society, but it should not happen in a self-development society. Absolutely. But more important is a person who is supervising a project management agency or project manager should be highly competent, like we are talking about a good consultant. Both are important. Yes, Chintan, sorry for interfering. No, it was a good insight. In fact, you just voiced my opinions as well. So yes, I spoke about workmanship as well. Poor workmanship also creates that kind of issues. Now, of course, it is English में बता दिया चिंतन भाई। I'm sorry. English wavelength पे घुस गए हम। तो हाँ, ये जो poor workmanship की वजह से भी कई बार ऐसे काम होते हैं, जैसे सर ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, अभी कई बार ऐसे लोगों को भी कई बार पता ही नहीं होता है कि स्क्वायर कैसा होना चाहिए। जैसे सर ने कहा ना, कट कॉर्नर्स होते हैं, तो अगर मैं एक स्पेसिफिकेशन देता हूं कि एक स्क्वायर बनाना है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, बट व्हेन आई स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स, जब मैं कॉर्नर्स काटना शुरू करता हूँ स्क्वायर नहीं रह पाता है। सो वही तकलीफ होती है जब मटेरियल आप शायद, मैं स्पेसिफिकेशन भी एज अ डिजाइनर बहुत अच्छा दूं कि बेस्ट मटेरियल यूज करो, मेंटेनेंस फ्री यूज करो, मगर जो उसे इंस्टॉल कर रहा है, जो उसे लगाने वाला है साइट पे, कई बार वो सही बंदा नहीं हुआ, या वो किसी वजह से, समझो कॉस्ट के फैक्टर की वजह से अनस्किल्ड लेबर को रख रहा है साइट पे, तब जाके भी कई बार ऐसा देखा गया कि काम इंफीरियर क्वालिटी का हो जाता है। सो आज की तारीख में आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी प्लम्बिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं दुनिया में जो 75 से 100 साल तक कभी लीक नहीं होंगी, मगर अभी बात ये आती है ऑप्शन की रहती है कि कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है, कैसे उसे, अभी वो सिस्टम भी अगर गलत तरीके से आप इंस्टॉल करोगे तो 100 साल क्या 100 दिन भी शायद टिक नहीं पाएगी। हमने आज ये सेशन में बीच में एक टर्म बहुत अच्छा सुना था मैंने कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किसी ने कहा था। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात से मैं 2 मिनट और लूंगा आपका। सेइंग इज के जब हम कहते हैं कि plumbers prevent diseases from happening, majority of the diseases, and a doctor cures, so doesn't that make a plumber better than a doctor?
बट ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। और सबसे सैड बात यह है कि अपने देश में प्लम्बिंग एजुकेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं। एक डॉक्टर बनने के लिए बेचारा 5 साल मेहनत करता है, मगर एक बंदा प्लम्बर बनने के लिए क्या करता है, पकड़ पाना उठा लिया और बोल दिया मैं प्लम्बर हूँ। हाउ इज दैट राइट? So that is how eventually the work suffers. आज अगर मैं किसी को कहूंगा कि आप क्वालिफाइड प्लम्बर को बुलाओ, 500 रुपया लेगा और आपका नाके वाला प्लम्बर 50 रुपए में काम करेगा, तो कोई बोलता है छोड़ ना, प्लम्बर ही है ना, 50 रुपए में कर दे रहा है ना। That is how leakages happen. राइट। तो ये जो मेन जो सोसाइटियों को जो समझना है कि सेल्फ में कि वन इज दैट कि उनको बेसिकली नाउ दे हैव देयर ओन चॉइस, अपने पास चॉइस है एंड गुड क्वालिटी, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन, उनका खुद का बिल्डिंग करना है। एंड दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि इवन व्हेन वी एज हमारे साथ में वी हैव एम्ब्रोसिया आल्सो एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम, जो हम लोग देखते हैं, सो वी टेक एज ओवरऑल पूरा अंडर वन रूफ वी टेक ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर ये सर्विसेज अलग अलग लेनी हो तो इसको सिंक्रोनाइज करना, इसको कोऑर्डिनेशन करना कभी कभी सोसाइटीज के लिए कैन बी अ बिगर चैलेंज देन दैट। सो वी प्रोवाइड दिस एक्स्ट्रा नॉलेज एंड एक्स्ट्रा टेक केयर एंड वी टेक दैट ओनर्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग। एंड ये सोसाइटी को समझना है कि इट इज जस्ट ओनली कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट सेल्फ डेवलपमेंट इज बेसिकली टू क्रिएट अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लिए खुद के लिए एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है एंड एक क्वालिटी लिविंग आपको आगे जाके करना है। यस नुपुर, यू कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अगेन बेसमेंट, कि आपने बताया जैसे बेसमेंट में वी नीड टू इंस्टॉल अ प्रॉपर पंप सिस्टम जिससे पानी हम इवैक्यूएट कर सकते हैं। अभी मुंबई के बारिश का तो कुछ ठिकाना है नहीं सर, तो हाउ टू डिसाइड कि व्हाट व्हिच साइज ऑफ अ पंप इज टू बी इंस्टॉल्ड? राइट, से अनलाइक व्हाट हैपेंस इज आपके जो ओपन एरियाज में जितनी बारिश होती है उसकी आपको इंटेंसिटी पता है। अभी जब बेसमेंट्स होते हैं या ऐसे पार्किंग एरियाज है, एनक्लोज पार्किंग एरियाज, उसमें रेनफॉल आपकी डायरेक्टली तो आती नहीं है, बट देयर इज अ लाइक्लीहुड कि देयर माइट बी अ रन ऑफ, जो बगल के एरिया से पानी बह के आएगा या आपके रैंप्स से बह के आएगा या कार्स आएंगी तो उसके साथ आएगा। सो जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में ये कंसिडर किया जाता है कि रैंप के स्टार्ट और एंड में हमेशा हम ड्रेन चैनल्स को देते हैं ताकि वो पानी को पहले ही अरेस्ट कर ले कि आपके बेसमेंट में नहीं भरे। बट एट द सेम टाइम देयर आर टू मेथोडोलॉजीज टू कंसिडर इन दिस। इज एक तो आपका बगल के एरिया जो है, ओपन स्पेसेस जितने हैं आपके, देयर इज नॉट गोइंग टू बी मोर रेन देन योर ओपन स्पेसेस, उससे ज्यादा तो पानी आपका आना ही नहीं है। सो वो एक फैक्टर होता है। आप कंसिडर करें कि आपके ओपन स्पेसेस में पानी कितना जनरेट होगा एंड व्हाट आर द चांसेस कि वो रैंप में कितना बह के आ सकता है। एंड देन सेकेंडली द फैक्टर इज कि आपकी सम्प साइज के बेसिस पे आप कितनी देर में आपका बेसमेंट आप खाली करना चाहते हैं। आइडियली द मेथोडोलॉजी दैट वी अडॉप्ट, इट मे वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट व्हाट वी अडॉप्ट इज कि आपका सम्प जैसे ही भरता है, सम्प टैंक जो होती है रेन वाटर की जमा होने की, इट शुड आइडियली ड्रेन आउट दैट टैंक विद इन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट, ताकि विद इन हाफ एन आवर आपका पानी निकल जाए बेसमेंट में से एंड इट डज नॉट फ्लड। Okay. I hope we've got quite clarity, तो I hope जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन तक भी आपका आंसर पहुंचा हो। Because पहले भी मैंने आपको बोला basement has always been a concern for the members, so they keep on asking. My next question is regarding fire fighting है। सवाल पूछा है, 2-3 लोगों ने पूछा एक्चुअली कि सर सरफराज सर अगर आप आंसर दे सके या जॉन सर कि फायर फाइटिंग के लिए what is the area that has to be left open, क्योंकि अगर fighters आए बिल्डिंग में with the vehicle and all, तो किस तरीके से वो अंदर आएंगे एंड उनको कितना एरिया हमको ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए into a building for firefighting? Actually, I thought that's an architectural decision, because the provision has to be made by the architect when you design the footprint of the building. But I think the minimum requirement is 6 meters of setbacks for a fire tent to move. But as the building heights goes up, we'll have to have more and more spaces, because the local ladder has to get that inclined position space for that. नहीं, आर्किटेक्ट से तो हमारा भी झगड़ा होता है सर कि अभी तो ड्रोन फायर फाइटिंग्स भी आते हैं, तो उसमें तो जगह ही नहीं चाहिए, क्यों इतना जगह छोड़ रहे हैं अभी कि ड्रोन फायर फाइटिंग्स भी आ रहे हैं, तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी? Well, anyway, there is a codal requirement. So National Building Code of India specifies what are the setbacks to be provided. So that has to be provided. Now, I don't have in my fingertips of various heights what is to be provided.
but the minimum is 6 meters. Yes, 6 meters basically, right? Yeah. एंड उदय भाई एक आपके लिए मतलब एक क्वेश्चन इसमें से है कि अगर ये मिनिमम अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो व्हाट इज द मिनिमम साइज रिक्वायर्ड बेसिकली, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए व्हाट प्लॉट साइज शुड बी देयर? जनरली व्हाट हम लोग क्या करते हैं, जैसे 500 मीटर का प्लॉट होता है तो जनरली 3 मीटर का डायामीटर का हम लोग जनरली रेन, बाकी उनकी जो भी डिटेल्स होती है वो बेसिकली कंसल्टेंट जैसे बैठे चिंतन जी, सरफराज जी, दे कैन प्रोवाइड, बट मिनिमम 500 मीटर का प्लॉट चाहिए उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। अबव 500 मीटर के प्लॉट्स के लिए सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है यहाँ पर, तो दिया जाता है इस तरह से। यहाँ से मैं चिंतन भाई को और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे सोसाइटीज में अभी समझो 40-50 साल जूनी पुरानी सोसाइटी हो जाती है ना, उसके अंदर जब ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है उसका जो मेंटेनेंस होता है ना सर बहुत बड़ा किया जाता है बेसिकली। वहाँ बहुत सारा मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो वाटर क्लीनेज है, मतलब बहुत बार उन लोग क्या करते हैं सर, पेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि जब लीकेजेस आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए तो उन लोग कुछ केमिकल यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट दैट, हाइजीनिक है। अपने जो एमसीजीएम वाटर देती है और वो जो वाटर ट्रीटमेंट के मतलब क्या बोलते हैं वाटर टाइटनिंग के लिए जो पेंट मारा जाता है या केमिकल मारा जाता है वो अगर मिक्स होता है अपने ड्रिंकेबल वाटर के साथ, सो इज इट गुड थिंग और कोई अदर ऑप्शन है उसके लिए बेसिकली कि वो कैसे हम लोग रोके उसको कैसे मेंटेन करें? ये बेसिकली जनरल क्वेश्चंस है सोसाइटी के लिए। राइट, सी अंडरग्राउंड टैंक ना सबसे पहले जैसे आपने कहा कि कुछ साल बाद इट स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग। जो वाटर प्रूफिंग होता है, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर भले आपको 10 साल की गारंटी देगा, बट पता नहीं कई बार ऐसा भी होता है कि 10 साल के पहले भी ड्यू टू सम रीजन और दी अदर लीकेजेस होते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रूल है ये कि आपकी जो वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं दो तरह की होती हैं, एक तो फ्लशिंग की होती है और एक डोमेस्टिक की होती है। कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने कहा कि यू माइट बी यूजिंग सुवेज ट्रीटेड वाटर आल्सो, सो रिसाइकल्ड वाटर है आप फ्लशिंग में डाल रहे हो, और जो नॉर्मल डोमेस्टिक वाटर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है डोमेस्टिक टैंक में रखेगा। तो रूल ये कहता है कि बोथ दीज टैंक्स हैव टू बी फिजिकली सेपरेट, बीच में गैप होना है, एक डबल वॉल या ऐसी कोई सिस्टम करके नहीं, दोनों को फिजिकली सेपरेट करना है ताकि जो ट्रीटेड वाटर है वो कंटेमिनेट नहीं कर सकते आपके ड्रिंकिंग वाटर को। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो ड्रिंकिंग वाटर की टैंक होती है आपकी जो डोमेस्टिक टैंक है, उसमें इवेंचुअली जब ओवर द इयर्स लीकेज के प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं एंड द वाटर स्टार्ट्स कंटेमिनेटिंग, तब जो केमिकल यूसेज होता है, आइडिया इज जब आप इस तरह का वाटर प्रूफिंग यूज करते हो, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वाटर प्रूफिंग, बट वाटर प्रूफिंग की कोई भी केमिकल्स वाली अगर आप ट्रीटमेंट करते हो, इट इज ऑलवेज आइडियल कि आप वो टैंक को कम से कम 2 दिन तक यूज नहीं करें ताकि वो केमिकल पूरी तरह सूख जाए। आफ्टर दैट जब आप टैंक पार्शियली फिल करते हैं उसे थोड़ा क्लीन करना चाहिए, उस पानी को फ्लश करना चाहिए, एंड ओनली देन यू शुड आइडियली यूज द वाटर। द राइट मेथड अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो राइट मेथड ये है कि कोई भी इंफीरियर क्वालिटी की आप टाइल्स ले लीजिए एंड टाइल द टैंक फ्रॉम द इनसाइड। आइडियली व्हाइट कलर की टाइल्स ली जाए ताकि कभी भी आप टैंक खोल के अंदर देखे भी तो इट बिकम्स वेरी इजी टू नोटिस इफ एनीथिंग इज रॉन्ग। व्हाइट कलर की टाइल्स होने की वजह से कुछ भी कचरा होगा, कुछ भी सेडिमेंट्स जमा हुए होंगे टैंक में, वो आपको तुरंत दिखेंगे, एंड टाइलिंग होने की वजह से इट एड्स टू एन एडिशनल लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग टू दैट। Good. I think you can take Nupur from here. Yes. Great. Next question है अगेन सरफराज सर के लिए है कि सर अभी जैसे कोविड की वजह से पीपल आर नॉट लिविंग देयर हाउसेज, या फिर बाहर से भी कोई आ रहा है तो वो अपने घर में उनको लेते नहीं है। सो जो गैस मीटर्स है बेसिकली अभी जो पाइपलाइन गैस यूज करते हैं उनके गैस मीटर्स घर के अंदर ही है, तो कुछ नई बिल्डिंग में क्या कुछ ऐसा प्रोविजन हो सकता है जिससे गैस मीटर्स, हम इलेक्ट्रिक मीटर्स का कैसे एक पूरा इलेक्ट्रिक रूम मीटर रूम होता है वैसे गैस मीटर्स के लिए भी एक रूम प्रोविजन बनाया जा सकता है क्या इन द न्यू बिल्डिंग? कैन दैट बी डन? आई एम अफ्रेड शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पीएनजी गैस, पाइप नेचुरल गैस जो अभी सप्लाई हो रहा है उसमें मैंडेटरी ये है महानगर गैस की तरफ से कि पाइप्स जो होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे, पहला कंडीशन। तो हम उसको लॉबी एरियाज वगैरह में वैसे भी नहीं ले पाते हैं उन पाइप्स को,
अगर हमको ये कॉमन मीटर जैसा कोई स्पेस क्रिएट करना है तो नेचुरली हमको लॉबी एरिया वगैरह टारगेट करना पड़ेगा, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो लॉबी तक रीच करने में द पाइप नीड टू ट्रेवल समवेयर इन द लॉबी, और फिर लॉबी से हमारे अपार्टमेंट्स में उन पाइप्स को जाना है, तो वहाँ पर भी इशू आता है। तो जनरली ये किचन से जो पाइप्स होते हैं वो एक्सटर्नली एलिवेट होते हैं पेरिफेरल डक्ट से, और वहाँ किचन में इंटर होते हैं, यूजुअल केस में यही होता है। लेकिन ये है कि जैसा इसका पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा है पीएनजी का, अभी मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स में पीएनजी के प्रोविजंस ही हो रहे हैं, तो नेचुरली महानगर भी शायद इसके लिए कुछ प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, जिससे ये एस्थेटिकली भी आर्किटेक्ट्स वगैरह को भी जो होता है ये फसाड पे डैमेजिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें कैटर होगी, और हो सकता है आगे के दिनों में ये सारी चीज़ें कुछ आएँ, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। उदय सर, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। चिंतन भाई से एक सवाल है, अगर एमसीजे हमको इतना अच्छा पानी देती है, फिर लोग, बेसिक क्वेश्चन है, लोग घरों में और वाटर फिल्टर क्यों लगाती है? ओके, इसका नहीं लगाना ठीक है, इसका जवाब मैं बहुत सिंपल दूंगा। जहाँ मैं रहता हूँ मुलुंड में, जहाँ मेरी ऑफिस है, इसके बगल में ही मुंबई का ट्रीटमेंट प्लांट है, भांडुप कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, भांडुप ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे जब मैंने विजिट किया था ऑन अ टेक्निकल टूर, जो मुझे पानी दिया गया था एक बॉटल में दिया गया, और दूसरी एक पॉपुलर ब्रांड का बॉटल वाटर मुझे दिखाया गया, और उन्होंने कहा कि ये दोनों टेस्ट करके बताओ, इसमें से जो बॉटल्ड वाटर है या जो ट्रीटेड वाटर है, आपको फर्क कुछ पता चल रहा है क्या? एंड इट, believe me Uday bhai, the fact is that the treated water given out by the MCGM is of a very high grade quality. मगर जब तक ये हमारे घर तक आता है, तब तक रास्ते में बहुत सारी जगहों पे there are situations like leakages, पानी चोरी किया जाता है कई जगहों पे पाइप तोड़ दिए जाते हैं, कभी एक्सकवेशंस होते हैं जिसकी वजह से पाइप टूट जाते हैं, अनप्लान्ड एक्सकवेशंस, जिसकी वजह से पानी कंटामिनेट होता है। जो पानी जो सोर्स से निकल रहा है इज द बेस्ट क्वालिटी, बट बाय द टाइम इट रीचेस यू इट कलेक्ट्स सो मेनी कंटामिनेशंस। अपने यहाँ भी कई बार ऐसा भी सिचुएशन है कि कई सबर्ब्स है मुंबई में जहाँ 24 आवर्स पानी सप्लाई शुरू हो गया है, बट कहीं कहीं नहीं है। तो जब वो सप्लाई आवर्स बंद हो जाते हैं तभी नेगेटिव प्रेशर हो जाती है लाइन में, तो अगल बगल का जो गंदा पानी भी होता है कई बार इस लीक से वो पाइपलाइन में आ जाता है। सो यस, वी डू रिक्वायर वाटर फिल्ट्रेशन येट. We are on our way to become a better, we getting a better water supply network. But trust me, जब मैं कहता हूँ कि पानी की क्वालिटी सोर्स भी बहुत अच्छी है, बट रास्ते में वो कंटेमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी सफर करती है। तो सर चिंतन भाई, कोई ऐसा सिस्टम है जो हम लोग सोसाइटी के लिए प्लान कर सके या डिजाइन कर सके और बता सके बिल्डिंग वाले को कि आपको आरओ या वाटर फिल्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा आपके घर के लिए? हम लोगों ने ऑलरेडी ये सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, जो एमसीजे से पानी आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है, फिर एक सिस्टम से वापस प्योरीफाई होके आपके घर तक आता है, तो आपको वो कॉस्ट नहीं करना है बेसिकली। कैन वी डिजाइन दोस काइंड ऑफ सिस्टम बेसिकली? Yes, absolutely. Depending on, see, एक एवरेज वाटर क्वालिटी तो होती है, हमें पता है। मुंबई में रियली स्पीकिंग जो बोलते हैं लोग आरओ सिस्टम डालने की, सच मानिए तो आरओ सिस्टम की आपको मुंबई में जरूरत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर प्यूरिफिकेशन जो चाहिए इज व्हाट यू नीड इज अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन आप कर लो और थोड़ा बेसिक फिल्ट्रेशन कर लो, दैट इज गुड इनफ। यू डोंट नीड आरओ इन मुंबई, क्योंकि हमें आरओ इतनी कोई टर्बिडिटी नहीं है या इतनी सैलिनिटी नहीं है या इतना हार्डनेस हमारे पानी में नहीं है, एंड द एवरेज क्वालिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड बाय द बीएमसी। एज आई सेड कि कंटेमिनेशन इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी अभी आई कैन नॉट प्रेडिक्ट के आज हमने जो बिल्डिंग में लाइन डाल दी है वो लाइन 2 दिन बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद कोई एक्सकवेशन की वजह से पंक्चर नहीं हो जाएगा। बट देन यस, जैसे मैंने कहा कि एवरेज क्वालिटी मिलेगी आपको, उसको आप बेसिक ट्रीट करके, सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट करके पूरी बिल्डिंग को दे सकते हैं, एंड देन यू कैन क्लेम कि हाँ, हमें कोई भी आरओ या बेसिक फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है आपके घर में। Just one point on that, Chintan. Yes. You know, any treatment systems for water you select, especially RO, you should ensure that the treatment system should not take away all the minerals which are required for your health. Absolutely. You know, many times what happens at RO plant, everything, it removes the minerals altogether which are required for our health, for the health of the body.
So it should not happen that it is, instead of helping you, it is damaging your health. So that's an important factor to be considered when selecting a treatment plan. Yes. Thank you very much for adding this. Yes. सर अभी एक लास्ट मतलब टू ऑल द थ्री पैनलिस्ट एक ही क्वेश्चन सबके लिए है कि कोई एक चीज मतलब जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जाए उसमें आपके हिसाब से विच इज द प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो एक सोसाइटी को किसी भी हालत में जब MEP कंसल्टेंट से करे तो उनको क्या करना चाहिए? तो एक सर जॉन जोसेफ सर यू शुड आंसर फर्स्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड लुक आफ्टर देयर सेफ्टी एंड security of themselves and the property. So the firefighting system, installation of that is the most essential part of it. And if the buildings are tall, you have to make sure that the evacuation provisions are absolutely foolproof, so that in case of fire, people can be evacuated and saved. So these are the most important things. Apart from that, you need water, you need drainage, you need electricity for any kind of happy living. Yes, so these are all installed. So fire safety is the best. Is not an essential. Right. No, that's an essential thing. You have to save yourself, the life and property. That is what the most important thing. Yes. Chintan bhai, now next. After you have saved your life, you have to save the most precious resource on this planet, which is water. So the designs, the kind of implementations which are done have to be very efficient. It should be done in such a way कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना भी करें और इतना भी कम यूज ना करें कि आपको जो ज़रूरत है वो नहीं मिले. अभी एक बहुत सिंपल उदाहरण है कि आप अभी इंडिया में जब किसी को फोन करते हैं और भाभी जी फोन उठाती हैं कोई और वो नहाने गए होते हैं तो जवाब क्या मिलता है? वो नहाने बैठे हैं. जब आप US में या किसी वेस्टर्न कंट्री में फोन करते हैं, व्हाट यू गेट एन आंसर इज ही इज इन द शावर. सो हमारे कल्चर में ही ये पहले से है, कोई शावर में बैठता नहीं है, हम बकेट से बैठ के नहाते हैं. तो in our culture we already save water but we just need to become more efficient. तो एक दो एलिमेंट हो गए, मतलब हमारे एक इन्होंने फायर बोला, आपने वाटर बोला, अभी सरफराज भाई अभी आपके पास फिर भी 3 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट आप बोलेंगे? सर आपको अनम्यूट करिए. अनम्यूट. हाँ अनम्यूट करिए. सॉरी मैं भूल गया था. ये जस्ट एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम इन केस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट, हमको ऐसे सिस्टम्स ऑप्ट करने चाहिए हमारी सोसाइटी में जो एनर्जी इफिशिएंट हो, जो कि हमारे लिए लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो. लाइक सोलर सिस्टम हो गए, एयर कंडीशनिंग में भी लाइक इंडिया में ये कल्चर नहीं है लेकिन अब्रॉड में ये काफ़ी कल्चर है कि सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक कूलिंग वाटर सिस्टम है या डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है सॉर्ट ऑफ. तो ऐसे सिस्टम्स को ऑप्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो. इवन इफ दे आर एडिंग लाइक शुरू में कुछ कैपिटल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं लेकिन वो 2 साल 4 साल या बहुत से बहुत 6 साल में पे बैक हो जाएगा, जबकि हमारी बिल्डिंग का लाइफ 30 साल होता है या 50 साल होता है. तो वो काफी सालों तक उसके बेनिफिट्स पास ऑन करेंगे फिर. Yes. Thank you everyone, all the panelists. Yes, मेरी तरफ से थैंक यू है एंड ऑल द व्यूअर्स देयर यू आर वाचिंग. और आपके लिए ये पूरा MEP मतलब आपको भी समझना है कि MEP क्या होता है एंड इसमें कंसल्टेंट्स का कितना इंपॉर्टेंस है एंड हाउ दिस हम लोग ने वो कि नॉट टू मेक इट वेरी इजियर, आपके लिए इजी करने के लिए हमने ये थोड़ी टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसको हम सिंपल वे में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एंड इट इज और आपको समझने के लिए कि इट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. एंड ये सबसे बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो ऑल अदर पार्ट से ये MEP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस ये इसी के साथ आपको रहना है. मतलब ये अगर प्रॉपर होगा आपका प्लानिंग में देन यू कैन सस्टेन योर बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग इतना लॉन्ग लाइफ होगा एंड आपके लिए वो एक दोनों चीज हो सकता है, एक तो कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है एंड इट कैन बी रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो. सो कॉस्ट कटिंग एंड इसके ऊपर हम ग्रीन बिल्डिंग आएंगे, उसमें और क्या कर सकते हैं, एक और पार्ट ले सकते हैं हम लोग इसमें. एंड एक पार्ट मैंने जॉन सर को भी कहा है एंड सरफराज जी को भी कहा है कि इसमें एंड चेतन अगेन दिल कम एंड कि इसको पूरा हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि सोसाइटी सेल्फ रिलायंट, कि हम सिर्फ होर्डिंग से या इसी से हमको इनकम नहीं मिल सकती. देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज व्हिच वी कैन एंड ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं. कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग जैसे सरफराज सर ने भी बताया और वाटर कंजर्वेशन की नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम पैसा रखेंगे, हर चीज रखेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, बट ये एनर्जी जो है और जो अभी हम जो ले रहे हैं, अभी जो इसका ये कर रहे हैं, तो ये हम वापस हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, दैट विल मेक एन इंपॉर्टेंस. यस नुपुर, ऑन दिस नोट आई जस्ट क्लोज दैट.
So I would like to thank everyone कि आपने इतने सारे insights दिए and हम हर Thursday आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, हमारे viewers के लिए अलग अलग topic लेके आ रहे हैं. अगले Thursday भी same time पे हमारा एक और topic होगा, वो हम कल या परसों में अनाउंस करेंगे. तो आप हमारा जो Facebook चैनल, Facebook जो पेज है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए. ऑल्सो हमारा YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले टॉपिक्स के बारे में आप हमेशा अपडेटेड रहे. और एक और चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई टॉपिक है आपके मन में और अगर आप चाहते हैं कि वी शुड हैव अ टॉक शो ऑन दैट टॉपिक, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. वी विल टेक अ लुक एट इट. एंड अगर आपके टॉपिक है रेलेवेंट टू द सेल्फ डेवलपमेंट एंड टू द एंटायर व्यूअर्स, तो हम वो टॉपिक के ऊपर भी टॉक शो करेंगे. तो अभी भी अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें एंड उसके लिए एक्सपर्ट्स बुलाए पैनल पे एंड उसके ऊपर एक डिस्कशन रखें, सो फील फ्री टू गिव अस सजेशंस रिगार्डिंग द टॉपिक. ऑल्सो ये वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए. जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना आप हमको एनकरेज करेंगे और हम और अच्छे वेबिनार्स और अच्छे टॉक शोज आपके लिए लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच. स्टे एट होम, बी सेफ, and we'll meet next Thursday at the tea time at 4 p.m. Thank you. Thank you.